Okay, so hello and good afternoon. Welcome to the EduphoreIAS, the live Hindu analysis class. And today, as usual, we'll be starting first of all from with the yesterday's question itself. So सबसे पहले हम कल के questions देख लेते हैं. Easy questions थे कल के. So first question is about the ratio of external debt to GDP stands at 18.9% at March ending 2022-23. Fine. तो रिमेंबर वन थिंग इज अब तो स्टैट्स भी पहले ये होता था कि स्टैट्स अगर इस तरह गए तो हाँ ठीक ही होगा यूपीएससी में, बट ओवर द टाइम स्टैट्स भी गलत होने स्टार्ट हो गए हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बट समहाउ अगर ये आपको 18.9 दिया है तो चांसेस ये हैं कि सही ही होगा बिकॉज एग्जैक्ट दिया हुआ फिगर. ठीक है, हो सकता था ये 19% अप्रॉक्स दे देते तो भी करेक्ट होना था. ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन कि इन व्हाट फॉर्म दिस हैज बीन गिवन. Next statement is while the debt service ratio during 2022-23 increased marginally. बिल्कुल ठीक है, हमने कल देखा था कि 5.2 से जो हमारी डेट सर्विस रेशियो है, मींस डेट की रीपेमेंट जो है that has increased to 5.3% out from 5.2. तो marginally इंक्रीमेंट देखने को मिला इसमें. So that's why the trend is increased marginally, has increased marginally. So correct option means both are correct. Both the statements are correct here. Easy one, easier one. Next is the G20 summit and India's success in disaster risk reduction are an opportunity to accelerate international cooperation and build resilience to risk. Comment for 10 marker in 150 words. So yesterday we discussed an article on this opinion page of the Hindu, and that article was redouble efforts to reduce disaster risk. And in that article we did discuss one thing, that risk जो है over the time actually risks are being created faster than they are being reduced. Fine, this is important. So how come? Of course, following the same IBC approach of answer writing here, that is intro, body and conclusion. So what should be the intro, since the question is of 10 markers, so there should not be more than 3 lines. So you can since the question is discussing about G20 summit and India's success in disaster risk reduction, so you can start with that you can start from this line itself, that risks are being created faster than they are being reduced. Or you can also start from like as leaders underscored the G20 at the G20 summit in New Delhi ahead of the United Nations General Assembly SDG summit in New York next week. The world stands at a critical juncture. In what sense? That the risks are being created faster than they are being reduced. So that would be sufficient. I mean, that much intro only. After that, in the body part, we can start with of course further, like the rise in disaster is a trend, not an aberration, number one. And it is the most vulnerable countries and the communities which are paying to the greatest price despite having contributed least to the problem of this climate change. Fine. So India, already among the world's most disaster prone countries, is experiencing this new reality acutely. Like 2022 लास्ट ईयर भी हमने देखने को मिला, इस बार भी हम उत्तराखंड एंड हिमाचल में देख चुके हैं त्रासदी. सो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस थिंग्स कुड बी मेंशन्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट, now what are the solutions? So number one solution is we have the solutions for both adaptation and mitigation at hand, and SDG, that is Sustainable Development Goals, is the blueprint for this solution. Fine. Apart from this, Sendai framework is another solution for the world. Fine. And many lessons we have also learned from this COVID-19 pandemic as well, which can be carried forward for this purpose as well, because it is again a kind of pandemic which is going to be another reason for optimism, or another solution can be India's stewardship on disaster risk reduction. Fine. यहाँ पे हमने देखा था कि all the 28 states of India have prepared their own disaster management plans in recent years. So this is a good thing. Apart from this, the 15th Finance Commission has altogether earmarked some funds for mitigating or these funds meant for reforms to disaster risk financing at the local level. So this is again something a positive step on the part of 15th Finance Commission. Apart from this, on the international stage as well, India is promoting disaster resilience and sustainability. In what form? So it includes the one of the coalition for disaster resilient infrastructure coalition that India has, of course, this has been came up with India's initiative.
and a global partnership for building resilience in, which is meant for building resilience in global infrastructure. Apart from that, हमारी जो NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसकी भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही है वर्ल्ड वाइड, एंड मैंने कल मेंशन भी किया था ऑपरेशन दोस्त के अंडर, दोस्त के थ्रू जो तुर्की में जो कि अपना जो अर्थक्वेक आया था, तो उसमें भी ऑपरेशन दोस्त के अंडर जो NDRF है वहाँ पे डिप्लॉयड थी. तो ऑफ कोर्स यू कैन कोट द एग्जांपल एज वेल. एंड ऑफ कोर्स द रिसेंट कंक्लूडेड G20 summit has been one of the success with 112 of the outcomes. Fine. So the transformation, what would be the way forward now from here on? Moving on, conclusion or the way forward. So of course the transformation that we need is, number one, disaster risk must be integrated at all levels into how we build, how we invest, and how we live. Fine. So this is one way how you can conclude. Apart from that, another point or the way forward is improving global data capabilities will help us predict and respond to the risk we are facing. Fine. So improving the global data governance system. And finally, we need to ensure that no one is left behind in this, especially the vulnerable communities and the vulnerable countries for the society. Fine. So this is how we can conclude this answer. So that's it as far as this question is concerned. Fine. Now let us start with the today's Hindu itself, and then we'll see further questions from the today's Hindu based on today's discussion. Okay. So this is the front page, 12th of September 2023, the Hindu. Okay. So what's important today from the front page? Okay. So CBI does not require permissions to prove pre-2014 cases too. Okay, so there was a case in 2014, and this case is popularly known as Dr. Subramaniam Swamy case, fine, of 2014 itself, fine. वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे क्या कहा था कि of course there is a section called section 6 of, you can say here, Dr. Subramaniam Swamy case of 2014 will have retrospective operation. Retrospective means the effect from the back date. ठीक है. Declaration made by the Constitutional Bench. So अभी भी 5 judges की bench, जिसको कि हम Constitutional Bench भी बोलते हैं, of a Supreme Court reviewed the judgment of 2014, which declared invalid a legal provision mandating the CBI to take prior permission before investigating corruption against senior government officials. तो आप देखते हो कि कुछ states हैं, suppose Bengal है, there are many states, around 8-10 states जिसने की जो permission है वो ग्रांट नहीं करते सीबीआई को, बिकॉज दे ट्रीट इट लाइक सेंट्रल एजेंसी है, ठीक है, एंड वो स्टेट्स में इंटरफेयर कर रही है यहाँ हमारे, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस एक्चुअली, ठीक है, डिफरेंट पार्टीज की सरकारें हैं, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स मतभेद जरूर है. मतभेद. ओके. तो इसमें 5 जज बेंच ने ये कहा है कि जो 6A है, सेक्शन 6A ऑफ DSP, दैट इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो कि गवर्न करता है सीबीआई को, ठीक है. This act actually is a legally governs the functioning of CBI, was void from beginning or the day when it was inserted on September 11, 2003. ये स्टार्टिंग से ही जो आपका सेक्शन 6A है जो आपने इंसर्ट किया था इस DSP एक्ट में, वो नल एंड वॉइड है, ठीक है. सो जो चीज बिगिनिंग से ही नल एंड वॉइड है, बिकॉज it goes against the, it violates or goes against the fundamental rights. And once a law is declared to be unconstitutional, being violative of part 3 of the constitution, then it would be held to be void ab initio. कि ये हमेशा के लिए जो है वो void ही होगी, ठीक है. तो therefore इसीलिए कहा है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है वो होगी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग, कि जो सीबीआई को परमिशन लेने की जरूरत है वो इवन कि प्री 2014 केसेस हैं उसमें भी नहीं जरूरत पड़ेगी. डज नॉट रिक्वायर परमिशन टू प्रूव प्री 2014 केसेस. ओके. लेफ्ट साइड, कोटा पुलिस कोचिंग सेंटर्स स्टेप ऑफ एफर्ट्स. ओके, हमारे को सुसाइड केसेस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए एफर्ट्स यहाँ लगा पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे अलोंगसाइड द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एज वेल, टेकिंग दिस reformative actions. Apart from this, here we have impact of food price inflation, ridding India of food insecurity, policies must ensure access to healthy diet. So इसको हम डिस्कस करेंगे. It has been written by economist of course Palpre Balakrishnan ji. So of course इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में.
And launch of West Asia Economic Corridor is a historic step said by Prime Minister। आप सबको पता होगा कि G20 के समिट के दौरान जो कि ग्रैंड सक्सेस रहा इवेंट ये, उसके साथ ही इंडिया ने इवन यस्टरडे ये जो फोटो देख रहे हो इसमें इंडिया एंड सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं दोनों लोगों की, ठीक है, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। एंड इसमें जो इंडिया एंड मिडल ईस्ट एंड यूरोप जो IMEC कॉरिडोर बन रहा है, जो कि एक बेल्ट एंड रोड के ऑल्टरनेटिव के देखा जा रहा है उसको ऑल्टरनेटिव के रूप में। तो कहीं ना कहीं इस ये जो वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, दिस इज गोइंग टू बी द हिस्टोरिक वन सेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। IMEC इंडिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप, IMEE नॉट C, इंडिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप, ठीक है। तो ये कॉरिडोर है जो इंडिया से लेकर के मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया होते हुए यूरोप तक को जोड़ेगा, ठीक है। तो दिस हैज बीन लेबल्ड एज एन अल्टरनेटिव टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। ओके, नाउ द न्यूज़ फ्रॉम सिटी दैट इज दिल्ली। तो यहाँ पे जो जो भी यहाँ से लोकल ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से, वो जरूर हैव अ लुक एट इट, आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है आसपास। Apart from this, the next page we have this states page. So क्या state page से कुछ important है, we'll have a cursory look at this. So politics here and of course only politics. Okay, politics only. So we can skip them safely. कोई important चीज़ तो नहीं, कुछ यहाँ दिख रहा है। IISc, it is Indian Institute of Science, Bengaluru, develops novel approach to detect and kill cancer cells. बस इतना पता होना चाहिए। Yes, this is the article, the lead article on today's editorial, which is important, and that is related to ridding India of food insecurity. ओके, सो फूड इनसिक्योरिटी की बात हो रही है कि इंडिया को जो है वो अगर रीड आउट करना है, इसमें से अगर बाहर निकालना है इस फूड इनसिक्योरिटी से, सो ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने ब्यूटीफुली काफ़ी लिखा एंड सारी हिस्टोरिकल चीज़ें कॉन्टेक्स्ट भी दिया है, साथ में प्रेजेंट डायमेंशंस को भी टच करते हुए स्पेशली इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन कितनी रही है उसको शो किया है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, वेल रिटन एंड ऑफ कोर्स article which is very important especially for G3, that is GS3 economy section, ठीक है, that how India can be made food secure. Okay, so India कहते हैं कि may be the fastest growing large economy of the world. Yes, it is, but it is also facing accelerating food price inflation. बिल्कुल, अगर जो लोग आप में से पता ही होगा, वीट के प्राइसेस, फ्लोर प्राइसेस आप देखोगे तो पहले से ज़्यादा हो गए हैं। टोमेटो प्राइसेस बीच में हुए थे, अब तो चलो स्टेबल हो चुका है, बट सम व्हाट फूड प्राइस में, फूड में इन्फ्लेशन, स्पेशली अगर इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में ज़्यादा है तो उसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन फूड की तो है ही। द राइज इन द प्राइस ऑफ फूड फर्स्ट एक्सेलरेटेड शार्पली इन 2019। सो आज कोई न्यू बात नहीं है, 2019 में पहले देखने को मिला था एंड हैज क्लाइम्ड इन मोस्ट ईयर्स देयर आफ्टर। इन जुलाई दिस ईयर annual inflation exceeded 11%, the highest in a decade. We are talking about the food inflation, remember. Implication क्या है इस हाई और continuously high food price रहने का? So the one of the implication is that a section of the population could be facing hardship in consuming food of adequate nutrition value. बिल्कुल ठीक बात है, आप खुद सोच के देखो कि एक ऐसा तबका जो 30 रुपए किलो टमाटर कंज्यूम कर रहा था, ठीक है, वही टमाटर अगर 300 रुपए किलो हो जाता है तो 10 टमाटर क्या छोड़ो, एक किलो टमाटर लेने से पहले 300 रुपए का वो 30 बारी सोचेगा किलो की नाम, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो अल्टीमेटली जो उसकी फूड हैबिट्स हैं और जो भी कंज्यूम वो कर रहा है वो उस पर तो इम्पैक्ट पड़ ही रही है ना महंगाई, ठीक है। दिस इज हाउ सम व्हाट दिस इंक्रीज इन
or continuation of high food prices or food price inflation actually somewhat impacting or the consumption habit of or consuming of food of adequate nutrition value of the citizens. Okay, so we now have one of the report, and that is the state of food security and nutrition in the world. ठीक है, इसको शॉर्ट में हम इसको स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड बाय FAO, शॉर्ट में इसको हम बोल देते हैं SFCN, स्नोफी, SFSN. ठीक है, so world of the this is of course report is published by FAO, Food and Agriculture Organization. This is one of the United Nations specialized organization. So this report or this this state of food security and nutrition report actually estimates the proportion of the population across countries unable to afford a healthy diet, and and the figure for India according to this report is how much. So for India, this figure for in 2021 is devastating to note. An estimated 74% of the population cannot afford a healthy diet. See, so according to this report, in 2021, 74% of the population of India could not or cannot afford a healthy diet. Given a population of 1400 million, that is 140 crores, this makes for approximately 1 billion Indians. ठीक है कि 140 करोड़ में से 1.4 बिलियन में से 1 बिलियन ऐसी जनता है जो अफोर्ड नहीं कर पाती प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड. ठीक है, a shrinking ability of households to finance their food requirement is evident also in studies undertaken in India itself. एक हमने थोड़े दिन पहले हंगर रिलेटेड भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था, तो उसमें भी हमने इस तरह की चीजें देखी थी. So why this finding is plausible? A study reported in this paper of the trend in the price of food in Mumbai city over 2018 and 23 over the 5 years found that while the cost of preparing a thali at home has risen by 65%. इसीलिए आपने थालीनॉमिक्स करके भी सुना होगा, थालीनॉमिक्स. तो थालीनॉमिक्स इज रिलेटेड टू दिस ओनली कि पर थाली जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है. ठीक है, कि थाली ओवर द टाइम महंगी होती जा रही है. That's why we give it the name थालीनॉमिक्स. तो जो मुंबई की सर्वे और जो ट्रेंड है वो पिछले 5 सालों में ये देखने को मिला है कि 2018 से 2023 के बीच में जो राइज इन प्राइसेस हमने नोट किया है और जो कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ थाली एट होम है दैट हैज राइजन बाय 65%. ठीक है, in this period the average wage of a manual worker rose by 38% and that of a salaried worker by 28%. सो आप समझ सकते हो कि अगर 65% से थाली की कॉस्ट बढ़ गई और एवरेज मैनुअल वर्कर की जो वेज है वो 38% से राइज हुई है और जो सैलरीड क्लास की है 28% से, तो अल्टीमेटली 65 रुपीज की अगर थाली महंगी हो गई उसमें से 38 रुपीज ही आपकी इनकम में इजाफा हुआ है, तो अल्टीमेटली देख सकते हो आप कि लॉस में हो. सैलरीड क्लास की बात करें तो उसकी और कम हुई है 28%, मीन्स 28 रुपीज. 65 रुपीज से थाली आपकी महंगी हो गई है बट आपको 28 रुपीज से ही एक्स्ट्रा इनकम हुई है. ठीक है, सो अगेन यू सी a wider gap in the two, 65 and 28. So of course this implies that reduction in purchasing power is of course considerable one here in this case, and it would be reasonable to expect that food consumption has been impacted. बिल्कुल ठीक बात है कि परचेजिंग पावर आपकी कम होगी ना. कोई थाली 65 रुपये से बढ़ गई, आपकी इनकम 25-28 रुपए से बढ़ गई है, तो ऑफकोर्स 38-40 रुपए आप कहाँ से मीट करोगे. ठीक है, पर थाली. तो कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर जो आपकी है वो पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है. तो दिस वुड बी इन लाइन विद द रिपोर्टेड राइज इन द प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया. बिल्कुल ठीक बात है. अगर ऐसा हो रहा है कि आपने कंजम्पशन कम कर दी, ठीक है, परचेजिंग पावर कम होने की वजह से, तो इट वुड रिजल्ट इन एनीमिया. फाइन, मोस्टली इंड्यूस्ड बाय द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज. In the latest NFHS, that is National Family Health Survey, जो latest है, that has covered the period 2019-21, over 50% of adult women were estimated to be anemic in India, according to the government's own latest data. Is available in the public domain. This suggests that Food and Agriculture Organization's finding that over half of India cannot afford a healthy diet is a plausible one. बिल्कुल ठीक बात है.
Even if you were to assume that the agency has overestimated number by 100%, we would be left with 500 million people in this category. बिल्कुल ठीक बात है कि एटलीस्ट अगर हम ये भी मान लें कि एजेंसी ने जो 74% की फिगर दी है कि इंडिया की जो है वो जितनी जनता 74% ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट और हेल्दी थाली, तो अगर मान लें कि इसको ओवर एस्टिमेट भी किया गया है तो भी आउट ऑफ वहाँ पे हम लगभग 100 करोड़ लोगों की बात करें, यहाँ पे हम 140 करोड़ में से 500 मिलियन की बात करें, लेट अस से टॉक अबाउट द 50 करोड़ ओनली, फाइन। तो इवन देन 50 करोड़ जनता ऐसी है जो कि क्या अफोर्ड नहीं कर सकती थाली, फाइन, कंसीडरिंग द फूड इन्फ्लेशन। So this is larger than the population of all the countries of the world other than China. Fine. इस सब 500 मिलियन 50 करोड़ की पॉपुलेशन जो है नहीं अफोर्ड कर सकती। ऑफ कोर्स ये भी दुनिया में पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा है, सिर्फ चाइना को छोड़ के। अब तो हम चाइना को भी सरपास कर चुके हैं पॉपुलेशन में। Okay, ensuring that then Indians have access to a healthy diet is the most important task of economic policy today. बिल्कुल ठीक बात है, ये इंश्योर करना सरकार के पार्ट पे, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स के पार्ट पे कि एक हेल्दी डाइट इंश्योर किया जाए एवरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज relied upon to control inflation has proved to be useless in this context. The Reserve Bank of India has failed in this task, with the inflation rate mostly higher than the target for 4 years by now. Its approach of contracting output, so जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजिम है ऑफ आरबीआई, उसके अंडर ऑफ कोर्स 6% 4% आइडियली इन्फ्लेशन होनी चाहिए, प्लस माइनस 2% हो सकती है, मतलब 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। बट पिछले 4 साल से ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री है वो इसके अपर बैंड से ऊपर ही रही है 6% से। ठीक है, बीच बीच में हमने 5 के अराउंड देखा भी है, 5.5, बट समहाउ इन एग्रीगेट 4 सालों से जो महंगाई है वो इसके रेंज से बाहर ही रही है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आरबीआई इस सेंस में जो है फेल्ड साबित हुई है। ठीक है, विद द इन्फ्लेशन रेट मोस्टली हायर देन द टारगेट फॉर 4 years बाय नाउ, इट्स अप्रोच ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउटपुट। तो कह रहे हैं कि जो अप्रोच है आरबीआई का वो किस पे है, कॉन्ट्रैक्टिंग द आउटपुट। बट इन्फ्लेशन होने का एक सबसे बड़ा रीजन है सप्लाई साइड बॉटलनेक्स की। सप्लाई साइड पहले से ही मींस टमाटर अगर महंगा हो रहा है मींस डिमांड तो है बट सप्लाई टमाटर की नहीं है इतनी मार्केट में, इसलिए महंगा हो रहा है, सीधी सी बात है। तो आप ऊपर से आप सप्लाई साइड मींस प्रोडक्शन को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो दिस इज नॉट अ गुड पॉलिसी ऑन द पार्ट ऑफ आरबीआई। सो ये यही कह रहे हैं कि द इट्स अप्रोच ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउटपुट व्हेन द इन्फ्लेशन रेट राइजेस, जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ सप्लाई बॉटलनेक्स, और फिर भी आप पॉलिसी में जैसे ऐसे ले रहे हो जिससे कि आउटपुट और कम हो जाए, ठीक है, सप्लाई और कम हो, तो समवट दिस इज अ मिसलीडिंग वन। फाइन, this is what he is saying. So misleading termed as inflation targeting does nothing to manage food inflation stemming from supply side. Central banks are incapable of solving this problem. It must be said within any time frame. It is necessary to intervene on the supply side to ensure that the food is produced at a steady price by raising the yield on land. बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको देखो एक एनालॉजी के थ्रू समझते हैं। जब भी इन्फ्लेशन में हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में, तो हम अप्रोच जनरली क्या होता है सेंट्रल बैंक्स का कि हम अपनी पॉलिसी रेट जो है वो बढ़ा देते हैं। उससे क्या होगा, लोन्स महंगे हो जाएंगे, लोगों के हाथ में पैसा, लिक्विडिटी कम होगी मार्केट में, इकोनॉमी में। सो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि फोकस किस पे, कि डिमांड जो है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है उसको कम किया जाए, ना कि सप्लाई साइड पे। तो डिमांड को तो आप कम कर दोगे क्योंकि डिमांड की वजह से महंगाई है, ठीक है, बट सप्लाई का क्या? तो ये भी तो हो सकता है कि उस डिमांड की वजह से जो महंगाई है उसको काउंटर भी किया जा सकता है बाय रेजिंग द यील्ड और बूस्टिंग द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्शन, इजंट इट? तो देयरफॉर ये एक मिसमैच कहीं ना कहीं सप्लाई डिमांड की सिनेरियो चलती रहती है मार्केट इकोनॉमी में, एंड इसीलिए गवर्नमेंट को यहाँ पे या सेंट्रल बैंक को इंटरवीन करना पड़ता है। नाउ ही इज टॉकिंग विद द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सो यू नो कि ग्रीन रेवोल्यूशन अर्ली 1960s का जो 1964 प्रिसाइजली, so India has a rich experience in this area, having engineered a green revolution in the 1960s, but it is not being tapped well. So you know कि पहले भी PL 480 हम import करते थे wheat from of course US and all, means and those are popularly called ship to mouth, कि जो भी आपने import किया बस खाने के लिए था, बस means we were not self sufficient in food production.
बट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन देखने को मिलती है। आज भी हम सेल्फ सफिशिएंट हैं इंडीड, बट कहीं ना कहीं कुछ इसमें चीज़ें थी जो हम सही से टैप नहीं कर पाए। क्या चीज़ें हैं, क्या पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं क्विकली। So at the time reeling under extreme food shortage following 2 successive droughts, the government orchestrated a supply side response. Yes, it was a supply side response. So green revolution was a supply side response in the sense that government focused on raising the yield, कि supply बढ़ाने पे focus किया गया, ठीक है, through by providing farmers with high yielding variety seeds, HYB seeds जिसको बोलते हो, cheap credit and assured prices through procurement or MSPs. This succeeded spectacularly. Within a few years, India was no longer dependent on food imports. Right? This was one of the best, the measure that government undertook that time. If there was a single event that aided India's quest to be self-reliant in the highly polarized climate of the World War, it was this, the Green Revolution of the 1960s. Western economists have pointed to the success of the United States mission to land a human on the moon as an example of an entrepreneurial state. Okay? However, to have engineered the Green Revolution in India at a time when it was a desperately poor country, challenged by having to ensure food security to a staggeringly large number, is perhaps more significant. ठीक है, कि उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरियल स्टेट डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशंस को by they successfully landing human on the moon was somewhat not even India's step of the green revolution and becoming self-sufficient in food production was perhaps more significant than even that entrepreneurial state or landing a person on moon. Fine. So with hindsight, means in the past we can see that mistakes were made, among them the rampant use of chemical fertilizer. हाँ, तो जब हम डिसएडवांटेजेस या नेगेटिव साइड्स की बात करते हैं ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थी उनको सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स की। इसकी वजह से ओवर द टाइम हम देखते हैं कि हमारी लैंड्स की प्रोडक्टिविटी जो फर्टिलिटी है वो ओवर द टाइम कम होती गई, एंड इस वजह से भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है बहुत, क्योंकि इरिगेशन के लिए आपको कोर्स, तो इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर रैम्पेंट यूज किया गया, फ्यूल्ड बाय सब्सिडी, हाई सब्सिडी दी गई, हायर सब्सिडी विच डिग्रेडेड द सॉइल, ऑफ कोर्स सॉइल फर्टिलिटी को इससे नुकसान हुआ। There was also the reliance on procurement prices rather than productivity increase to ensure farm incomes. बिल्कुल ठीक बात है, गवर्नमेंट की सब्सिडी और प्रोक्योरमेंट प्राइस जो था उस पर रिलायंस ज़्यादा शो की गई instead of productivity enhancement which fueled inflation. We also see that the policy was almost exclusively focused on cereals rather than pulses. बिल्कुल ठीक बात है, we are the largest producer and importer of pulses इसी वजह से, the main source of protein for most Indians. However, rather than carping about the errors made in an extraordinary successful economic policy intervention, we should be correcting them now. ठीक बात है कि हम उस पे जो हुआ पीछे उसको लेके बैठे रहे कि नहीं जी ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये what next can be done. So let us now focus on the present and let us come with the new sets of policies. So we should be correcting them whatever mistakes were incurred. So at the same time, we should focus on the specific goals of lowering the cost of producing food. The first green revolution had a specific agenda of making India self-sufficient in food production. In this, it succeeded eminently and in a remarkably short time, but without paying any attention to the cost of producing food. For this, a second agricultural revolution is needed now. ठीक है, no doubt self-sufficient तो हमें बन गए, बट कहीं ना कहीं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, एंड ओवर द टाइम ये बढ़ता ही दिख रहा है। इसलिए आज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी की आप बात करो तो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम हमें कम होती हुई दिख रही है, एंड इन चीज़ों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो फार्मर्स को पड़ती है उसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्या है, इस सेकेंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की जरूरत है। टू कंटेन द राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड वुड रिक्वायर एक्शन ऑन मेनी फ्रंट्स। ठीक है, और ये हाई जो इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रही है इन फूड प्राइसेस स्पेशली, और फूड हमें इसको काउंटर करने के लिए कुछ मल्टीपल और मेनी फ्रंट्स पे एक साथ हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अ मिशन मोड इज नेसेसरी एज फॉर पॉलिसी इट इज क्लियर दैट प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, कैश ट्रांसफर्स एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड प्रायोरिटी लैंडिंग रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नॉट सफिशिएंट। कि अभी तक जो ये चार चीजें हम फॉलो कर रहे हैं, कैश ट्रांसफर्स, सपोज पीएम निधि
योजना जो है उसके अंडर पीएम सम्मान निधि योजना, उसके अंडर 6,000 की कैश ट्रांसफर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स में की जा रही है किसानों के अकाउंट में डायरेक्टली. दैट इज नॉट सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द राइटर. प्रोक्योरमेंट प्राइसेस भी ठीक नहीं है, एमएसपी एंड ऑल कह सकते हो, जिस पे प्रोक्योर करती है सरकार. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी खामियां काफी हैं. एंड प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो हम बैंक्स की बात करते हैं कि इतना ईयर मार्क किया गया कि आपने जो लेंडिंग है, लोन है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को देना है. तो ये 4 चीजें भी अभी सफिशिएंट नहीं है इन ऑर्डर टू increase the yield increasing interventions on the part of फोकस जो है वो कॉस्ट रिडक्शन पे होना चाहिए प्लस यील्ड को इंक्रीज करने पे. आर सो सच काइंड ऑफ यील्ड रेजिंग एफर्ट्स और द स्टेप्स आर नीडेड टू एटलीस्ट कंटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो फार्मर्स को पड़ रही है उसको कम करने के लिए जरूरी है कि हम यील्ड रेजिंग रिलेटेड, जिससे कि यील्ड बढ़े, इस तरह के कुछ हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे. ठीक है. Agricultural yield is lower in India than in the East Asia, pointing to the potential for an increase. बिल्कुल ठीक बात है. यहाँ पे हमारे लिए ऑप्टिमिज्म है कि हमारी yield अभी उतनी नहीं है, मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट अभी हम नहीं अचीव कर पाए हैं. सो अगेन we have this potential, the opportunity to raise this potential. Attention is needed to extend irrigation to 100% of the net sown area and end to restrictions on leasing of land, a quickening of agricultural research and the reinstitutions of extension facilities. तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है जो ऑथर दे रहे हैं. नंबर 1 सॉल्यूशन इज व्हाट, एक्सटेंड इरिगेशन टू 100% ऑफ नेट सोन एरिया. जितनी भी सोइंग होती है उन सब एरियाज तक इरिगेशन फैसिलिटी हो. ठीक है, पानी पहुंचे. एंड एंड टू रेस्ट्रिक्शन ऑन लीजिंग ऑफ लैंड. लीजिंग ऑफ लैंड जो है उस पर जो रेस्ट्रिक्शन है उसको हटाई जाए. एंड अ क्विकनिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट्स मींस R&D जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको बढ़ाने की जरूरत है. एंड री इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज, जिसमें कि लोकल लेवल पे ग्राम सेवक तक के लोग इन्वॉल्व होते थे अर्लियर. ठीक है, एट द विलेज लेवल. तो कहीं ना कहीं एक्सटेंड करके वो सब करने की दोबारा से हमें जरूरत है. ठीक है, एंड इस तरह से कहीं ना कहीं हम जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको कम कर पाएंगे और यील्ड को हम बढ़ा सकते हैं. एटलीस्ट कम नहीं तो उतना तो रख पाएंगे जितनी है, साथ में हम यील्ड को बढ़ाएं, इस पर ज्यादा फोकस. In all areas identified above, the role of states is crucial. बिल्कुल ठीक बात है कि agriculture is a state subject actually, और वहाँ पे without states cooperation this cannot be undertaken. In the 1960s, the states that were chosen for the spread of new technology worked closely with the central government. ठीक बात है. This would have to be replicated in order to make difference to the country as a whole, with the central government taking the states along in a spirit of cooperative federalism. एक बात है कि दोनों लोग साथ मिलकर काम करेंगे सेंट्रल स्टेट्स, तभी बात बन पाएगी. ठीक है, जो हम इंटेंट, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा. एट द सेम टाइम इट मे बी आस्क्ड इफ द स्टेट्स आर प्लेइंग देयर पार्ट टू एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी rather than relying on food allocations to their public distribution system from the central pool. हाँ, तो साथ में हमें ये भी देखने की जरूरत है कि क्या सेंटर्स अपने लेवल पे जो रोल इनको प्ले करनी चाहिए वो कर रही है कि नहीं. ठीक है, सो कहीं ना कहीं हमें इस चीज पे भी ध्यान देने की जरूरत है स्टेट्स को अपने लेवल पे. बट अ नॉन आइडियोलॉजिकल अप्रोच वुड बी नीडेड. सही बात है, आइडियोलॉजी जब आप लेके आते हो, लाइक डिफरेंट पार्टीज हैं, डिफरेंट सरकार हैं, ठीक है, सरकारें हैं, सो ऑफ कोर्स जब आप आइडियोलॉजी को फोरफ्रंट में लाते हो तो फिर आप कोऑपरेट नहीं कर पाओगे. सो नॉन आइडियोलॉजिकल अप्रोच की यहाँ पे जरूरत है. वेदर एट द सेंटर और इन द स्टेट्स, इफ अ डिफरेंस इज टू बी मेड. A noticeable feature of the first green revolution was that by relying on private enterprise, the then prime minister chose a capitalist approach with the objective of making India self-sufficient in food, unmindful of any damage that would be caused to her socialist image. It was the green revolution that made the first dent on poverty in India. ठीक बात है. So the poor did benefit from this strategy. Similarly, now in order to ensure that all Indians have permanent access to a healthy diet, no approach consistent with ecological security must be off the table. ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है. ये कोई भी अगर आप अप्रोच लेके चलते हो अभी सेकंड लेटेस्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के लिए, तो उसमें जरूरी है कि हम इकोलॉजी, एनवायरमेंट की सिक्योरिटी को इंश्योर करते हुए चलें. ठीक है, अदरवाइज जो हमने गलतियां ग्रीन रेवोल्यूशन 1 में करी है वो दोबारा से होंगी. इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि हम एनवायरमेंट को, इकोलॉजी की सिक्योरिटी को साथ में फूड सिक्योरिटी के साथ ही इंटीग्रेट करके आगे की हम रेवोल्यूशन जो भी है, स्टेप्स जो भी है वो ले. ठीक है, अ वेरी वेरी गुड piece of article. The second is the signals from this made in China smartphone story.
तो अभी क्या चल रहा है, तो ये हमारे लिए कुछ खास रेलिवेंट नहीं है, बट यहाँ पे मोस्टली चाइना एंड यूएस के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया ये, ठीक है, कि जो चाइना की हुआई कंपनी है अभी अभी उसने एक फ़ोन लॉन्च किया है, दैट फोन इज नेम्ड आज, आप देख सकते हो इसने पूरे मार्केट में रिपल इफेक्ट क्रिएट कर दिया है। नेम इज मेट 60 प्रो, फाइन, which houses the 9000 processor. The chipset reportedly uses a semiconductor manufacturing international corporation second generation 7 nanometer fabrication technique, thereby demonstrating China's capability to manufacture a 7 nanometer chip. ठीक है, तो इस ठीक है, सो इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कंपेयर किया है टेक्नोलॉजिकल प्रोएस ऑफ चाइना एंड इंडिया, सॉरी यूएस। तो ऑफ कोर्स यूएस काफी आगे है चाइना से इस केस में। देयर आर सेवरल challenges that plague China's chip ecosystem compared to the US-led ecosystem. The fact that America's encompasses the most advanced economies of the world confers upon it several advantages that China's isolated ecosystem will find nearly impossible to compete with. ऑफ कोर्स, तो चाइना खुद ही करता है कि जो करना है खुद ही करो, बट एक ये भी बड़ी अच्छी कोट है कि जब आपको अकेले जब आपको ग्रो करना हो और फास्ट रेट से करना हो तो आप अकेले चल सकते हो, ठीक है, बट जब आपको लंबे टर्म तक ग्रो करना है, वहां पे बैठना है, सुपर पावर बनना है, तो आपको सबको सांस लेके चलना पड़ता है, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड चाइना। बाकी इसी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं तो उसमें जाने की खास जरूरत नहीं, इंडिया के पर्सपेक्टिव से कुछ खास नहीं है। ओके, okay, this article is not that important. Okay, तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, चाइनीज इकोनॉमी की स्लो डाउन, चाइना में डिफ्लेशन क्यों है, ऑन चाइनाज इकोनॉमिक स्लो डाउन, इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या हो सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम दिस आर्टिकल विच कैन टेक अवे। तो इकोनॉमिक डेटा जो है कमिंग आउट फ्रॉम बीजिंग सजेस्टिंग दैट और इंडिकेटिंग दैट ऑल इज नॉट वेल विद द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फाइन, which was expected to spring back and drive global growth after 3 years of grinding restrictions under current president, that is zero COVID policy. So figures on August 8 that were actually released showed that the country suffered its biggest fall in the exports in more than 3 years. Okay, the growth in China's GDP was fueled by investment, not domestic consumption. Remember, whenever we talk about Indian economy, we say that Indian economy is basically driven by what? Public investment and private consumption. Right? It means कि private investment इतनी ज़्यादा नहीं है, public investment means सरकार ज़्यादा करती है, and private consumption जैसे हम लोग as an individual और household consumption, ठीक है? So, but growth in China's GDP was fueled by investments and not domestic consumption. So that's the issue. कि डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं हो रही है, डिमांड नहीं है डोमेस्टिकली, अगर आपकी गुड की मार्केट में डिमांड नहीं है, सो डोमेस्टिकली अगर डिमांड नहीं है तो ऑफ कोर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करोगे, बट उससे आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी कितने लंबे टाइम तक ठीक चल पाएगी, दैट्स अ क्वेश्चन, ठीक है। बट इंडिया के पास क्या है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड तो है, ठीक है, वी आर द लार्जेस्ट वन ऑफ द मार्केट्स करंटली, तो इसलिए while many economies have followed an investment-driven model, China's reliance on it was extreme. Investment was nearly 50% of its GDP. इंडिया में देखोगे तो it's not even 30%. फाइन, 30% के अराउंड चल रही है, कई बार 28-9 कम भी होती है, कई बार 32-33 के समवट देखने को मिलता है, बट नॉट इन दिस रेंज particularly, not more than 40%, not even more than 35%. So while household consumption in 2010 was just 34%. So you see, the household consumption was just 34% while investment was 50%. So of course investment led growth जो चाइना की थी, and that too of an extreme level, ठीक है। So this might be the reason of slowing down of Chinese economy. But what is important from this article is the last paragraph of the question that why is China's slowdown a cause of concern for the world? वो इसलिए क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नॉट टू फॉरगेट, वो इसलिए भी क्योंकि एक्सपोर्ट्स में एक मेजर कंट्रीब्यूशन शेयर है चाइना के, इस वजह से जो ग्लोबल ग्रोथ है, जब हम ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें एक मेजर और चंक जो है और शेयर है वो किसकी है, चाइना की। तो चाइना की अगर एक डोमेस्टिक इकोनॉमी स्लो डाउन ग्रोथ होती है, जैसे एक्सपोर्ट्स में हमने देखा 3 इयर्स की सबसे कम एक्सपोर्ट हुई है इस बार, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड या ग्लोबल ग्रोथ में उसमें भी गिरावट जो है देखने को मिलेगी हमें, because of this fallout of Chinese economy. So why is China slowdown a cause of concern or concern? So according to Dhaval Joshi ji of BC Research, he says that China
has generated 41% of the world's growth. China has generated 41% of the world's growth in the past decade, nearly twice the 22% of contribution from the US. So global growth, global GDP की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो highest contribution you can say is of China, almost double of US in the last decades. ठीक है, last 10 years में चाइना की जो है almost double contribution है than US. ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना किस तरह से करता, चाइनीज इकोनॉमी हाउ वेल इट इज बिहेविंग नाउ, एंड वे मोर देन 9% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूरो एरिया. तो यूरोपियन यूनियन से सिर्फ 9% की कंट्रीब्यूशन ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो 22% वाज फ्रॉम, एक डेकेड में हम देख रहे हैं इसको, 22% वाज फ्रॉम यूएस एंड almost double, that is 41% from China. This means that China has generated 1.1 percentage points of the 2.6% real growth rate of the world economy. कि अगर पिछले 10 सालों में वर्ल्ड इकोनॉमी ने रियल ग्रोथ, नॉमिनल की बात नहीं करें, रियल की बात करें, मींस माइनस इन्फ्लेशन, तो अगर रियल ग्रोथ हमें 2.6% देखने को मिली है तो उसमें 1.1% जो शेयर है दैट इज ऑफ alone and single-handed in China. That shows the importance of or how integrated China has become over time, the global system or global economy. It made up this big chunk of the global growth because its economy was growing at about 8 to 9% a year. Now that its growth rate is half of that, its contribution would also be half to about 0.5 points. तो अगर इसकी contribution कम होती है तो overall considering the global dynamics today हो सकता है कि हमें हो क्या सकता है, होगा ही ऐसा कि वर्ल्ड की जो ग्रोथ है वो भी आपको कम देखने को मिलेगी. ठीक है, तो 2.6% की रियल ग्रोथ थी, हो सकता है कि ये ग्रोथ आपको 2% तक देखने को मिले. ठीक है, या इवन बिलो उसके. ठीक है, क्योंकि चाइनीज की इकोनॉमी ऑलमोस्ट हाफ से ग्रो कर रही है. ठीक है, और कंट्रीब्यूशन उसकी 1% से 0.5% पे जाती है. तो इसलिए कहते हैं कि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो 5 ट्रिलियन और 30 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी बनना है तो ऑफकोर्स 9 से 10% की जो एनुअल ग्रोथ है वो हमें 1 से 2 डेकेड्स, मतलब 15 से 20 साल तो मिनिमम करनी ही, मतलब इतनी देर तक करनी पड़ेगी. ठीक है, 10% के रेंज में, 8 से 10% के रेंज में, तभी हम कहीं ना कहीं इन टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे. बट इस तरह से नहीं जैसे चाइना ने ग्रो किया. ओके, नेक्स्ट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स, स्पेशली जीएस के लिए तो बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हमें, नॉट इन डिटेल, बट जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जिसका है उसको पता होना चाहिए इन डिटेल. व्हाट एग्जैक्टली इज द ग्रेशम लॉ? सो ग्रेशम लॉ जो है इन इकोनॉमिक्स, व्हाट हैपेंस व्हेन गवर्नमेंट्स फिक्स करेंसी एक्सचेंज रेट्स. सो यू कैन से, तो ग्रेशम कौन थे? दिस लॉ हैज बीन नेम्ड आफ्टर इंग्लिश फाइनेंसर थॉमस ग्रेशम. एक्सक्यूज मी. So this came into play most recently during the economic crisis that we experienced in Sri Lanka last year, during which the Central Bank of Sri Lanka fixed the exchange rate between the Sri Lankan rupee and the US dollar. So this यहाँ पे आपको आइडिया ये हो गया क्योंकि जिस ग्रेशम लॉ इज समवॉट रिलेटेड टू द फिक्सिंग ऑफ योर एक्सचेंज रेट. ठीक है, देखते हैं क्विकली कि है क्या. So Gresham law refers to the dictum that bad money drives out the good money. ठीक है, Gresham's law comes into play when the exchange rate between the two monies, that is Sri Lankan rupee and US dollar or currencies, is fixed by the government at a certain ratio that is different from the market exchange rate. तो एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट जिसमें कि आरबीआई और जो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है वो फिक्स कर देती है. ठीक है, द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू करेंसी, वी कॉल इट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. अदर इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो कि मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड ऑफ दिस फॉरेन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, नॉट द फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग. सच प्राइस फिक्सिंग कॉजेज द अंडर वैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी. बिल्कुल ठीक बात है कि मार्केट हो सकता है वैल्यू ज्यादा हो, या आपने जब फिक्स किया उस टाइम पे उतनी हो, आगे चल के बढ़ जाए तो आपकी तो करेंसी अंडर वैल्यूड होगी ना इन कंपैरिजन टू अदर. So therefore such price fixing causes the undervalued currency, that is the currency whose price is fixed at a level below the market rate, to go out of the circulation, and the overvalued currency, let us say dollar here, on the other hand remains in circulation but it does not find enough buyers. ठीक है, तो ये सारा माजरा है, ये सारी मैकेनिज्म है ग्रेशम लॉ की. तो बस ये ध्यान रखना कि फिक्स एक्सचेंज रेट रिलेटेड है. जो करेंसी की फिक्स एक्सचेंज रेट फिक्स की गई उसकी वैल्यू अंडर वैल्यू हो जाती है, जो नहीं की गई उसकी ऑफ कोर्स
ओवर वैल्यूड हो जाएगी, ठीक है। बट अंडर ओवर वैल्यूड जो करेंसी है, जो डॉलर्स, उसके भी लेने वाले लोग कम होते हैं। आई मीन उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि लोकल करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है, लोकल पैसा ही नहीं है, परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो आप क्या ही डिमांड करोगे फिर। ओके, ओके। Several hill villages in Manipur added to valley districts. Okay, withdrawal of AFSAPA, that is Armed Forces Special Power Act 1958 from the hill areas of Manipur needs to be reviewed. तो AFSAPA जो स्पेशल पावर ग्रांट करती है 1958 की जो एक्ट है उसके अंडर, तो इसको रिव्यू करने की डिमांड चल रही है, स्पेशली सदर्न स्टेट्स में, जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी टाइम तक, ये लंबे टाइम तक AFSAPA जो है वो वहाँ पे हमें देखने को मिला था। धीरे धीरे इसको सरकार हटा रही है, बट कंसिडरिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली मणिपुर में जो सिचुएशन है उसको कंसिडर करते हुए दोबारा से इसको डिमांड है कि कुछ हिल स्टेट्स में जहाँ पे ये सिचुएशन, वायलेंट सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, उस वहाँ पे दोबारा से रिव्यू किया जाए कि दोबारा से वहाँ ज़रूरत है तो रीडिप्लॉय किया जाए, ठीक है। ओके, ग्लोबल सिंपोजियम होने वाली है टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ फार्मर्स राइट्स। फ्यूचर ऑफ फार्मर्स राइट्स, प्रेसिडेंट जो हमारी हैं, President of India will inaugurate, President of Bharat in fact will inaugurate a global symposium on farmers' rights organized by the International Treaty on Plant Genetics Resource for Food and Agriculture, ठीक है। सो हमें पता होना चाहिए किस पे है, थीम क्या है, एंड ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम दिस। So here Kashmir Valley's growers are anxious as import duties relaxed on American apples. तो import duty अगर अमेरिकन एप्पल्स पे कर दिया तो अब अमेरिकन एप्पल्स इंडिया में आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए जो कश्मीर के ग्रोअर्स हैं, एप्पल ग्रोअर्स, वो कहीं ना कहीं उनके लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो सकते हैं। Brazil will focus on inequality during G20 presidency. So of course G20 की नेक्स्ट की जो प्रेसिडेंसी है from 1st of December 2023, that would be in the hands of Brazil. एंड ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हम इनइक्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे, जो थीम होगा हमारा अंडर ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी। डिक्लेरेशन रीअफर्म्स G20 इज अ बॉडी फॉर इकोनॉमिक टाइज नॉट जियोपॉलिटिक्स, सेड बाय चाइना, ठीक है। ओके, कोचिंग कोटा रिलेटेड न्यूज ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, ग्लोबल न्यूज, किम जोंग उन from head of North this Korea will visit Russia, setting the stage for a meeting with Putin, तो ठीक बात है। US Vietnam warn against threat in South China Sea, साउथ चाइना सी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड ऑफ कोर्स इसको जो है वियतनाम को ऑफ कोर्स काफ़ी दिक्कत है उससे, एंड वियतनाम में प्रोटेस्ट भी किया है। कनाडा PM टू लीव न्यू दिल्ली बाय टुडे नून एट द अर्लीस्ट। ओके, dystopian future already here, UN official says of climate change। माइग्रेंट डेथ्स हो रही हैं, यहाँ पे देख रहे हो बर्ड्स, तो ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज की जो इम्पैक्ट है वो सब जगह देखने को मिल रहा है, फ्रॉम बर्ड्स टू ह्यूमन बींग्स। एंड फॉरेन टीम्स ज्वाइन रेस्क्यू वर्क आफ्टर मोरक्को अर्थक्वेक, और लगभग 2500 लोग इसमें मारे गए हैं इस अर्थक्वेक की वजह से। नाउ इंडिया टू एक्सप्लोर डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ बिजनेसेस ऑन LSE, दैट इज लंडन स्टॉक एक्सचेंज। फाइनली स्पोर्ट्स पेज, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, दैट्स इट। So that's it as far as today's Hindu analysis is concerned. Before we stop here, let us quickly have a look at the today's question based on our discussion.
So first is the state of food security and nutrition in the world report is published by. A very easy question, easy question. And next is ensuring that Indians have permanent access to a healthy diet is the most important task of economic policy today. You need to comment but for 15 marker and in 250 words. Fine. So that's it from my side for the day. If you have any query, anything, you put the same in the comment section. Until then, keep revising, take care, and stay tuned for tomorrow's Hindu analysis. Thank you.